Hello everyone and welcome to Innovative Science Tutorials. So finally today I am going to start up with the biology syllabus of class 9, and children, the first chapter that we are going to study is on your screen, that is cell, the unit of life. Now before starting the chapter, I want to clarify something over here, children, that this chapter forms the basis or foundation of the subject biology, which in turn is the study of life, isn't it? Biology is composed of, the word biology is composed of two Greek words, that is bios and logos. Bios means life and logos means study. So basically biology is the study of life, and we all know that life begins with a single cell, that is known as zygote. तो मतलब life ही जो है वो एक सेल के कारण है. That is why this chapter is very very important. Your first unit of standard 9 and standard 10 is basic biology. ठीक है, बेसिक बायोलॉजी का मतलब होता है सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सब कुछ सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, और भी कुछ बहुत कुछ है जो हम लोग बाद में डिटेल्स में जानेंगे. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. मैं आपको अभी 9 में बता रही हूँ, आप जब 10 में जाओगे तो आपको जो पहला चैप्टर मिलेगा दैट विल बी द रिकैप और द रिविजन इन द फॉर्म ऑफ अ समरी ऑफ द चैप्टर सेल ओनली. और सेल चैप्टर से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट यू विल गेट सेल साइकिल, सेल डिविजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. तो ये सारे चैप्टर्स को आगे जेनेटिक्स भी है, हाउ कैन आई फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स जनरली बहुत डरते हैं जेनेटिक्स नाम से ही. बेटा अगर आप 9 क्लास से मेहनत करोगे, मतलब अगर आप सेल चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको अच्छा स्कोर करने से nobody can stop. This is my promise to you. So from now itself, concentrate on this chapter so that you don't face any difficulty in standard 10 as well. ठीक है, 9 तो अच्छा करना ही है, you have to get the flying colors, but you have to build up the foundation for standard 10 as well at the same time. So let us begin without wasting any time, children. So let us see that what we are going to study today. So there are so many contents, children. Let me tell you what we will study today. Rest of the contents will be completed in subsequent classes. Today we will be doing what is a cell, discovery of microscope by Antony von Leeuwenhoek, followed by discovery of cell. Then two types of microscope, we will learn about them, both light microscope and electron microscope, followed by cell theory and also an introduction to the various scientists like Euclidean, Schwann and Virchow, who discovered the cell theory. Children, we also learned that cells are microscopic in nature. With this comes up the need for a microscope to observe these microscopic structures which cannot be seen with the naked eye. Now next is beta the discovery of microscope by Antony von Leeuwenhoek. Leeuwenhoek was a Dutch scientist, okay, and he was the first scientist who discovered the simple microscope, popularly known as the Leeuwenhoek's simple microscope. सबसे पहले let us understand that what is a microscope. Microscope is an instrument, children, that is used to magnify small objects. Now magnify small objects means to magnify, to enlarge, to multiply the size of an object into, suppose 5 times, 10 times, 100 times, whatever. So into a number of times so as to have a proper view of the same. ठीक है, अब एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी कर दिया, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे अभी सेल का डिस्कवरी नहीं हुआ था. सेल के डिस्कवरी से बहुत पहले इन्होंने ये माइक्रोस्कोप ऑलरेडी डेवलप कर लिया था. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, देन दिस सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ ल्यूवेनहॉक कंसिस्टेड ऑफ अ बाइकन्वेक्स लेंस. ठीक है, ये जो आप लेंस देख रहे हो इस वाले पोर्शन में और इधर भी
आप देख रहे हो ये जो है ये दोनों ही बाई कन्वेक्स लेंस है। बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब इसको आप मिरर से कंफ्यूज मत हो जाना। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा वो कन्वर्जिंग होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। लेंस एंड मिरर आर नॉट सेम थिंग, दे आर completely different from each other. So here you might make a mistake, so better be careful. So it consisted of a single biconvex lens. मैं आपको शो कर देती हूँ जो बोलना चाह रही हूँ। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? इस तरह का ना, ठीक है। तो बाई कन्वेक्स, ठीक है, बाई कन्वेक्स ये बोलना चाह रहे हैं। अब ये क्या है? बाई कन्वेक्स जो है रेज को एट अ पॉइंट मिलाएगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा। क्यों कन्वर्ज करेगा? ताकि वो किसी एक पॉइंट पे, उस स्पेसिमेन पे, उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करे जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। मैं एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक के टाइम का बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये किया, इस बाई कन्वेक्स लेंस की हेल्प से उन्होंने माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, ठीक है। तो सम ऑफ दीज माइक्रोस्कोप्स हैज अ कंसिडरेबल मैग्नीफाइंग पावर, मतलब मैग्निफिकेशन का जो कैपेसिटी था वो अप टू 200 टाइम्स था, मतलब 200 टाइम्स उसको बड़ा करके वो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते थे। तो अगर इसका आप अदर पार्ट्स देखोगे तो इट इज हैविंग अ सैंपल होल्डर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ सैंपल होल्डर एंड दिस इज कॉल्ड अ फोकस नॉब। अब फोकस नॉब का जो फंक्शन है वो सिमिलर टू रिसेंट वर्ल्ड का जो रिसेंट टाइम्स का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसी की तरह है, जिसमें हम लोग को दो मैग्नीफाइंग मिलता है, ठीक है। एक लो पावर मैग्निफिकेशन और दूसरा हाई पावर मैग्निफिकेशन, दो हम लोग यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है। ये बहुत ज्यादा, मतलब आप इसको बोल सकते हो एडवांस तो नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से इट वाज वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि 200 टाइम्स भी अगर किसी भी स्पेसिमेन को मैग्नीफाई किया जा रहा है तो काफी स्टडी कर पा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Now children, next is discovery of cell. Now we all know that discovery of cell would have never been possible without the discovery of microscope. In other words, the invention of microscope led to the discovery of cell. And who discovered the cell? Cell was discovered by an English scientist named Robert Hooke. Okay, so how did he discover cell beta? One day he was observing a thin slice of cork. Cork means bark. From which tree did he took the bark? He took the bark from an oak tree. When he studied this under the microscope, this is the microscope that he used. This is called Hooke's microscope, children. You can see on your screen. So with the help of this, he came to know that the slice of cork was containing so many compartment or box like structure similar to the small rooms of the monks in a monastery. Then he named these as cells, because cells means room, okay, or compartment. So that is why he named cell as cell. So next is what? Next is about the Hooke's microscope, ठीक है, that is the microscope discovered by Robert Hooke. तो यहाँ पे इसको सबसे पहले समझते हैं कि रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, वी हैव the eyepiece similar to the modern eyepiece that we have in the compound microscope. Next is the body, which is known as barrel, ठीक है, because it is in the shape of a cylinder. Next to it is a focusing screw. Now what is this focusing screw, children? क्या है ये बेटा? This is the adjustment knob like structure, ठीक है, adjustment screw like structure with which he used to adjust the magnification or the focus, ठीक है, कि अगर बहुत अच्छे क्लियर से नहीं दिख रहा है और क्लियर देखना है तो he used to rotate or turn this screw so as to get a finer vision.
और मॉडर्न डे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आई विल टीच यू आफ्टर सम टाइम, देन यू विल फाइंड दैट यस द मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे आर नथिंग बट दे आर एडवांसमेंट ओवर Hooke's microscope. There are so many similarities, children. So after the focusing screw we have objective lens over here. This is the platform or the stage, okay, and this is the specimen holder. तो यहाँ पे क्या करते थे रॉबर्ट हुक, अपना जो भी स्पेसिमेन रहता था he used to fix it up over here in the on the specimen holder and he used to observe it with this eyepiece and objective lens. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइट नहीं है, लाइट का कोई सोर्स नहीं है तो स्पेसिमेन तो विजिबल होगा ही नहीं, तो यहाँ पे लाइट का जो सोर्स है उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के माइक्रोस्कोप में क्या देखा कि वहां पे कोई पर्टिकुलर सोर्स का नेम मेंशन नहीं था कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, बट यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है बेटा ऑयल लैम्प। तो एक ऑयल लैम्प से जो लाइट रेज है वो क्रॉस करते थे, पास होते थे थ्रू अ वाटर फ्लास्क एंड देन नेक्स्ट देयर यूज्ड टू बी अ कनकेव मिरर व्हिच यूज्ड टू कन्वर्ज द रेज onto the specimen that was to be observed. Now I hope that you have understood कि ये सेटअप पूरा कैसे वर्क करता था। यहाँ से आईपीस से देखते थे, ऑब्जेक्टिव लेंस से वो मैग्नीफाई होता था, जो ऑब्जेक्ट वो देखते थे, जो स्पेसिमेन वो स्टडी करते थे, फोकसिंग स्क्रू से उसको फाइन या कोर्स एडजस्टमेंट करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं था, मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ये डिस्कवरी काफ़ी मोटिवेशनल भी था बाकी साइंटिस्ट के लिए, जिसके कारण क्या हो गया कि मॉडर्न डे जो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं वो धीरे धीरे करके दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखोगे कि सोर्स ऑफ लाइट इन हुक्स माइक्रोस्कोप वाज एन ऑयल लैम्प। ठीक है, अब बेटा सेल का जो स्ट्रक्चर था मैंने सब कुछ बता दिया, उसका ये डायग्राम है। सेल, आपको सेल को सेल क्यों बोला रॉबर्ट हुक ने, थोड़ा समझिए। सेल को इसीलिए सेल बोला, उन्होंने जब थिन स्लाइस को स्टडी किया तो उस टाइम पे देखा ये बॉक्स लाइक, बिल्कुल ये हनी कॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, बिल्कुल ये उस टाइप का स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था। यही रीजन था कि उन्होंने वर्ड यूज किया सेल। सेल मीन्स कंपार्टमेंट or room. I hope now everything is clear. So now let us proceed to the next topic, children. Now next is, children, you can see this is the diagram of an oak tree. This is just to show you. So next is compound microscope. Next type का जो माइक्रोस्कोप है हमारा वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेरी सिमिलर टू द माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक, लेकिन वेरी एडवांस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंसेस है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये माइक्रोस्कोप बना है वो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप के ही टर्म्स पे है। तो यहाँ पे जैसे कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी क्या है, एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी होता है। ठीक है, और ये क्या है, मैंने बताया कि दिस इज द इम्प्रूव डिजाइन ऑफ रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप। तो इसका जो कैपेसिटी है बेटा, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी जो है वो कितना है, दैट इज 2000 टाइम्स। ठीक है, 2000 टाइम्स तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। और द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ये वाला जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, यहाँ पे लाइट का सोर्स क्या है, रॉबर्ट हुक में तो एक ऑयल लैम्प था, रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप में एक ऑयल लैम्प का यूज करते थे वो। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है वो कोई भी हो सकता है, नेचुरल लाइट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी, लेकिन उसको बेंट किससे किया जाता है, ग्लास लेंसेज से किया जाता है। ये वो पॉइंट है अगेन इसमें, इस सब टॉपिक में, जिसको आपको रिमेम्बर करना है, एकदम बाय हार्ट कर लेना है कि यहाँ पे जो लाइट किसी भी सोर्स से आ रहा है, जो लाइट आ रहा है फोकस करने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसको बेंट किससे किया जाता है और स्पेसिमेन की तरफ फोकस किया जाता है, दैट इज डन बाय ग्लास lenses. Children, now let us understand the various parts of a
Compound microscope. Compound microscope is composed of two types of parts. First is optical parts and second is mechanical parts. The optical parts includes only two types of lenses. First is your eyepiece lens, this one, ठीक है, through which we observe the specimen, and the second is the objective lens. It can be 1, 2, 3 depending upon the type of microscope we are using. तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है. This is called your objective lens. और यहाँ पे हो गया eyepiece lens. So these are the two optical parts of a compound microscope. Apart from that, there is a head, there is an arm, and there is a base. Arm connects the head of the microscope with the base, and it also helps in shifting the microscope, ठीक है, while doing the experiment also, and also while shifting it from one place to another, ठीक है. This cylindrical portion of the microscope is known as the body tube, okay, and this region is called the revolving nose piece region. अब इस पे क्या होते हैं, इससे अटैच होते हैं जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है, तो ये इससे अटैच्ड होते हैं. हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं बेटा, उसका जो मैग्निफिकेशन कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है. जनरली जो रेंज होता है दैट इज 4x2, मतलब 4 टाइम्स टू 100 टाइम्स, ठीक है, डिपेंड करता है. जो जनरली हम लोग यूज करते हैं मैं बता देती हूँ, दैट इज 4 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड 4x, ठीक है. देन वी हैव 10 टाइम्स एंड 40 टाइम्स, ठीक है. जनरली हम लोग जो यूज करते हैं लैब में 40 टाइम्स एंड 100 टाइम्स ऑल्सो, सॉरी. तो 40x एंड फाइनली 100x. तो ये वो वैल्यूज है ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंसेज दैट वी यूज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है. तो 4x का मतलब क्या हो गया, किसी भी स्पेसिमेन को 4 टाइम्स मैग्नीफाई करता है. सिमिलरली 10 है, 40 है, 100 है, तो उतने टाइम्स उसको मैग्नीफाई करता है. और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है. दीज आर दी ऑप्टिकल पार्ट्स. तो उनकी बात नहीं कर रही थी मैं बात कर रही थी दिस रिवॉल्विंग नोज पीस की. तो अगर हम लोग को ये मैग्निफिकेशन चेंज करना है तो हम लोग इससे रोटेट कर सकते हैं. सपोज ये 10x वाला है जो फ्रंट में है, सपोज इससे हम लोग किसी स्पेसिमेन को देख रहे थे लेकिन वो उतना अच्छा से नहीं दिखा, ठीक है, ये वाले की बात कर रही हूँ. तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको रोटेट करूंगी और सपोज ये वाला जो है, सपोज कर लो कि ये 40x वाला है, तो मैं इसे आगे ले जाऊंगी, फोकस करूंगी इससे स्पेसिमेन को, और हो सकता है मुझे पहले से 10x वाले से काफी बेटर दिखे. तो बेसिकली रिवॉल्विंग नोज पीस इज यूज टू एडजस्ट द ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है. कभी बढ़ाने में काम आएगा तो कभी घटाने में. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज दिस स्टेज. दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल स्टेज विच हैज गॉट 2 क्लिप्स. इसमें 2 क्लिप्स होते हैं, मेटल क्लिप्स, दैट आर यूज्ड टू फिक्स द स्पेसिमेन. सपोज हमने कोई स्लाइड स्टडी करना है, परमानेंट स्लाइड, सपोज परमानेंट स्लाइड ऑफ माइटोसिस और अमीबा, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी विल प्लेस इट अंडर द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन द मैकेनिकल स्टेज and we will fix it up, we will clip it with the help of 2 clips that are provided on the mechanical stage. Next क्या है बेटा, अब इस मैकेनिकल स्टेज के जस्ट नीचे आप देखोगे तो ये आपका क्या लिखा है, रैक एंड पिनियन सब स्टेज. इससे हम लोग स्टेज को अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के करीब ले जा सकते हैं, उससे दूर ला सकते हैं. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज द मिरर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिरर, इट फोकसेस द लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन, ठीक है. यहाँ पे एक अपर्चर होता है, इस अपर्चर के थ्रू लाइट जो है वो डायरेक्टली स्पेसिमेन के ऊपर जाता है, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, दैट इज योर कोर्स फोकसिंग नॉब एंड फाइन फोकसिंग नॉब. अब ये है क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है फोकस कर रहा है, लेकिन उनका फोकस को भी एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं. लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी लेट अस से कि एक ऑनियन पील को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस प्लांट सेल्स को स्टडी करने के लिए, और हमने ये देखना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बस
थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल डिटेल देखना है कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है, सेल वॉल कैसा दिखता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोर्स एडजस्टमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो नहीं देखना है। लेकिन अगर हम ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं कि अंदर में थोड़ा बहुत सेल ऑर्गेनील्स भी दिख जाए, ठीक है, सपोज दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मतलब हम लोग फाइनर फोकस चाहते हैं, इन दैट केस वी विल डू फाइनर फोकसिंग मैकेनिज्म एंड वी विल यूज द फाइनर नॉब, ठीक है, फाइनर एडजस्टमेंट नॉब, इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और इसको बोलते हैं फाइनर एडजस्टमेंट नॉब या फिर फाइन फोकसिंग नॉब, जैसे भी आप बोलिए। तो विद दिस compound microscope is complete. Now next is children, this is the one which you use in your laboratory. So this is just to show you that how it appears, ठीक है, व्हाइट कलर का भी होता है, जरूरी नहीं है मैंने ब्लैक दिखा दिया तो सिर्फ ब्लैक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वाज टीचिंग, ठीक है। Next is electron microscope. We don't have to study a lot of detail about it. The thing that is important is that an electron microscope is a microscope that use a beam of accelerated excited electrons as a source of illumination. मतलब यहाँ पे lights का यूज नहीं होता है, यहाँ पे किसका यूज होता है, यहाँ पे लाइट रेज की जगह beam of electrons excited accelerated moving at a speed electrons का यूज होता है, किस लिए, as a source of illumination. Illumination for what? For the स्पेसिमेन टू बी स्टडीड, ताकि वो इल्यूमिनेट हो जाए स्पेसिमेन जिसे हमको स्टडी करना है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो बेटा कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर जो है, जो मैक्सिमम, आपको मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं कि एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है वो मैक्सिमम बहुत ज्यादा तो 2000 टाइम्स तक ही क्या कर पाएगा, किसी भी स्पेसिमेन को मैग्नीफाई कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख, रेंज है 2 लाख टू 5 लाख, अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, ठीक है। तो 2 लाख टू 5 लाख इसका रेंज होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन। इन केस ऑफ एनी डाउट यू विल आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो 2 लाख टू 5 लाख मैंने रेंज भी बता दिया, यहाँ पे जो है मैक्सिमम लिखा हुआ था दैट इज द 5 लाख टाइम्स, वो किसी भी स्पेसिमेन को एनलार्ज करता है, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, इल्यूमिनेटर कौन है यहाँ पे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बेटा, एक्सिलरेटेड। और इसका डिस्कवरी किसने किया था, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? Children, electron microscope was discovered in the year 1931 by two scientists named Ernest Ruska and Max Knoll. Okay, so for this and subsequent work on the subject, Ernest Ruska was awarded the Nobel Prize for Physics in the year 1986. ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, किनको, अर्नेस्ट रस्का को मिला था इन द ईयर 1986 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था, आप देख लो क्या था। मैंने बोला था कि यहाँ पे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वहां पे लाइट को बेंड करने के लिए हम लोग ग्लास लेंसेज का यूज करते हैं। तो अब मेरे तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या यूज करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस बेंड करने के लिए स्पेसिमेन के तरफ, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इट्स वेरी इजी टू आंसर एक्चुअली, जिनको पता था वो कमेंट बॉक्स में पहले ही टाइप कर देना है ना। तो दैट इज व्हाट इज योर मैग्नेट। मैग्नेट के हेल्प से यहाँ पे जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्लो कर रहे हैं उनको स्पेसिमेन के तरफ जो है बेंट किया जाता है, ठीक है, किससे, मैग्नेट से। Now I hope this is clear. Now let us move on to the next topic. Rapidly we'll do it. This is the comparison between light and
electron microscope. So here are the features, then the differences are there, ठीक है, comparison is there, sorry. तो सबसे पहले रेडिएशन मतलब इल्यूमिनेशन किस सोर्स से करते हैं हम लोग, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट रेज से करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम से करते हैं. देन वी कम टू द मैग्निफिकेशन. एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितने टाइम्स तक मैक्सिमम कर सकता है मैग्नीफाई, वो 2000 टाइम्स तक ही कर सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने टाइम्स तक कर सकता है, 5 लाख टाइम्स तक कर सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस वन. अब यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर जो है मतलब कितना से कितना छोटा ऑब्जेक्ट दिख सकता है, तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 200 नैनोमीटर तक का ऑब्जेक्ट जो है उसको देख सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 0.2 नैनोमीटर, जस्ट इमेजिन चिल्ड्रेन, 0.2 नैनोमीटर तक के स्पेसिमेन को भी स्टडी कर सकता है. दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं ना, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर वर्ड जो यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, उसका मतलब है कि वो डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो उसका इमेज आ रहा है वो वाला डायग्राम है. सो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्या है, फोकस यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंसेज से होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है. फिर बायोलॉजिकल मटेरियल, लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग लिविंग और डेड दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टडी कर सकते हैं. लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग सिर्फ डेड को स्टडी करेंगे, क्योंकि लिविंग तो फिर लिविंग रहेगा ही नहीं अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट बेटा साइज, अगर साइज कंपेयर करें तो लाइट माइक्रोस्कोप हम लोग इसको लैब में यूज करते हैं, तो इट्स ऑब्वियस है कि इट इज स्मॉल, इट इज पोर्टेबल. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, आप देख लो एक बार फिर से डायग्राम में, इट इज सो ह्यूज, इट इज नॉट एट ऑल स्मॉल और पोर्टेबल, ठीक है. तो इट्स वेरी लार्ज एंड इट इज फिक्स्ड, इट इज स्टैटिक, वी कैन नॉट मूव इट व्हेनेवर वी विश टू मूव इट, ठीक है. वी कैन नॉट शिफ्ट इट ऑलवेज एज पर आवर विश. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल. लाइट माइक्रोस्कोप में कोई भी स्पेसिमेन को स्टडी करने के लिए हम लोग एक सिंपल स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, उसको, और हम लोग काफी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी स्पेसिमेन को स्टडी करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट चिल्ड्रन, द लाइट माइक्रोस्कोप इज वेरी चीप. I will say it is relatively cheap, but the electron microscope, since it uses the electron beams, तो वो जिस सोर्स से आएगा that is very expensive, ठीक है. तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है. Now next is the cell theory children. The cell theory was propounded by two scientists called Schleiden and Swan, okay. In the year 1838 to 39 they discovered this theory. They studied about cell, बहुत सारा features के बारे में उसके बारे में पढ़े, and finally they came up with this theory. Now let us see what, पहले बता दूं, this is Schleiden, this is Swan and this is Rudolf Virchow, ठीक है. I will teach you about them also. So what does the cell theory says? It says that all organisms are composed of वन और मोर सेल्स. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है या तो वो एक सेल के बने होंगे या फिर वो एक से ज्यादा सेल्स के बने होंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स. मतलब सेल जो है वो किसी भी लिविंग थिंग का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है. एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला दो तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि all cells are produced by the division of pre-existing cells. In other words, new cells develop from pre-existing cell. मतलब नए सेल जो बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, उनमें सेल डिवीजन होने के बाद. Who said this?
This was said by Rudolf Virchow in the year 1858. So he modified the cell theory, and the cell theory which is on your screen is the modified cell theory. बेटा पहले दो ही पॉइंट्स थे, that first वाला और second वाला, लेकिन फिर 1858 में रुडोल्फ वर्चो ने एक थर्ड पॉइंट, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडी अबाउट सेल, he gave that point, he modified the cell theory and said कि all cells, they are derived from pre-existing cells. It's very easy to understand, children. This is the last subtopic for the class today, children. Now let us see little bit about each of the scientists associated with the cell theory, because it is a very important theory of biology. First is Matthias Jakob Schleiden. Children, he was a German botanist. Botanist मतलब one who studies about plants. ठीक है? So, along with Theodor Schwann, he confounded the cell theory. He propounded the cell theory along with Theodor Schwann when in the year 1838, and also in the year 1838, Schleiden defined the cell as the basic unit of plant structure, and a year later Schwann added up and he defined the cell as the basic unit of animal structure. मतलब क्या, स्क्लीडन ने बोला कि जो सेल है वो प्लांट्स का बेसिक यूनिट है, और स्क्वान ने बोला कि सेल जो है वो एनिमल का बेसिक यूनिट है, उसके स्ट्रक्चर का. ठीक है, तो मतलब अब ये दोनों ने अपना जो भी सोच था उसको मिक्सअप किया, ऐड किया, एंड टुगेदर दे propounded the cell theory. Next is Theodor Schwann. So he was a German physician and physiologist. His most significant contribution to biology is considered to be the extension of cell theory to animals. मतलब जो स्क्लीडन थे उन्होंने तो सिर्फ प्लांट तक ही अप्लाई किया था, ठीक है, सेल को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ द प्लांट, लेकिन इन्होंने उसको एक्सटेंड किया था कि सेल जो है वो केवल प्लांट्स का ही बेसिक यूनिट नहीं है बल्कि एनिमल के स्ट्रक्चर का भी बेसिक यूनिट है. एंड देन नेक्स्ट टू देम came Rudolf Virchow, sorry. So his full name was Rudolf Ludwig Karl Virchow. He was a German physician, children. He was also an anthropologist, then pathologist, prehistorian, biologist, writer, editor and politician as well. So आपको एक बात और यहाँ पे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न पैथोलॉजी. इनको मॉडर्न पैथोलॉजी का फादर बोला जाता है. व्हाट इज पैथोलॉजी बेटा? इट इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस. So students, with this we come to the end of this session. See you all in the next class. But do not forget to like, share and subscribe my channel if you really find it useful, and also press the bell icon so as to get all the notifications of my upcoming videos and live classes. Thank you.